Hi everybody. In my previous video, I have discussed about the objectives of the budget, the components of the budget. We have studied the capital expenditure, the revenue expenditure, capital receipts, and a bit about revenue receipts. In this video, we will be discussing about the revenue receipts, types of budget and types of deficit. So मैं शुरू करता हूँ revenue receipts से. Revenue receipts जो हैं वो दो तरह की हैं. One is in the form of tax and other is in the form of non-tax revenue receipts. जो tax receipts हैं, tax है क्या? सबसे पहले tax is the necessary payment which we have to make it to the government without expecting anything in return. Government के पास जो भी tax से collection होगा, government may use that collection for the benefit of people. But हमें जो भी tax है वो government को pay करना है और हमारा कोई क्लेम नहीं है कि गवर्नमेंट उससे बेनिफिट ही लाए. वी हैव टू पे इट. टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. वी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स इन विच द इंसिडेंस एंड इम्पोजिशन लाई ऑन द सेम पर्सन. यानी जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लगेगा वो इसको पे करेगा. इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, these are the example of direct tax. Indirect tax are those tax जिसमें जिस व्यक्ति पर लगता है लेकिन अंतिम भार कोई दूसरा व्यक्ति उसको वहन करता है. So the incidence and imposition lie on different person. For example, we pay entertainment tax to the cinema owner. Cinema owner pays this to the government. So this is a shifting of the tax. Like for the goods and services, the consumers have to pay to the retailer, retailer to the wholesaler, and wholesaler to the government. So this process goes on. So tax and indirect tax both constitutes tax receipts of the government. Taxes are of three types. The nature of taxes is progressive, regressive, or proportionate. When you have to pay in the fixed proportion of your income as a tax, that tax is known as proportionate tax. When the rate of taxes keeps on increases with the increase in the income, that is known as progressive tax. Like in the present Indian system, up to 5 lakh, up to 2.5 lakh, there is no tax. From 2.5 lakh to 5 lakh, the rate of the tax is 5%. Then 5 lakh to 10 lakh, the rate of tax is 20%, and above 10 lakh, the rate of tax is 30%. So this type of tax is known as progressive tax. The third category of tax is regressive. When the income increases, the rate of tax decreases. तो इनकम इंक्रीज होने से जब टैक्स की रेट डिक्रीज होती है तो टैक्स बेस थोड़ा सा वाइडन हो जाता है. और इनडायरेक्ट टैक्स में मोस्टली यू कैन सी देयर इज ए रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स, कि जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है, इफ दे आर बाइंग गुड्स, so they are spending less on their consumption basket, and poor people in proportion to their income are spending more on their consumption basket. So poor people in proportion to their income are paying more tax, whereas the rich people, they are paying less tax. So this tax is known as regressive tax. Government. So revenue receipt में दूसरा पार्ट है non-tax revenue receipts. We can categorize it into four categories. एक कैटेगरी है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. गवर्नमेंट की जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी जो भी इनकम है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. दूसरा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. इनकी जो भी सेवाएं देने के बाद जो भी बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. These are also the part of non-tax revenue receipts of the government. तीसरा है एस-चीट. एस-चीट क्या है कि कोई पर्सन है and he is not having any heir, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, कोई वारिस नहीं है. वो व्यक्ति अगर गुजर जाएगा तो उसका जो क्लेम है, जो प्रॉपर्टी है, उसके जो क्लेम्स हैं गवर्नमेंट के हो जाएंगे. सो इट इज द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन हु हैज नो हेयर, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है. देन द फोर्थ वन इज फीस एंड फाइन्स. सो जो भी हमारा चलान कटता है, हम लाइसेंस फी पे करते हैं, तो जो भी हम फी पे कर रहे हैं और फाइन्स पे कर रहे हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट.
So this way we have got completed the revenue receipts of the government. इनको हम revenue receipt इसलिए बोलते हैं because these receipts do not create any liabilities for the government and there is no reduction in the assets for the government. Now the next is types of budget. Budget जो है वो तीन तरह का होता है. One is balanced budget, the second one is surplus budget, and the third one is deficit budget. What is balanced budget? In the balanced budget, the estimated expenditure of the government is equal to estimated receipts. So जहां पर expenditure और receipts दोनों समान हो उसको हम बोलते हैं balanced budget. So हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो भी टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट पूरा का पूरा स्पेंड कर रही है, यानी गवर्नमेंट की जो भी इनकम है दैट इज फ्रॉम टैक्स कलेक्शन, और जितना एक्सपेंडिचर है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस बजट. देखने को नहीं मिलता है. दूसरा हमारा है सरप्लस बजट. इन सरप्लस बजट द एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स. तो इसमें गवर्नमेंट के पास सरप्लस क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सरप्लस बजट. No modern economies are following surplus budget. And the third one is deficit budget. In deficit budget, the estimated expenditure is more than the estimated receipts. वो इसलिए कि गवर्नमेंट जो भी अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करती है इकोनॉमी में, कि जब भी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो देयर विल बी अ व्हर्लपूल. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से फैक्टर डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. सो बेसिकली जब भी हम ज्यादा स्पेंड करेंगे इकोनॉमी में नॉर्मल टाइम्स में तो इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि ये जॉब्स को बढ़ाने वाला और इनकम को बढ़ाने वाला होगा. सो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज मैंने आपको बताया सब डेफिसिट बजट आज की डेट में बनाती है. नाउ कम टू द डेफिसिट. सो जो बजट डेफिसिट है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट्स, उसको हम तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट. जिससे हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती हैं कि द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज 3.5%. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिस्कल डेफिसिट? तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. सो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. बोरिंग्स को भी हम गवर्नमेंट की रिसिप्ट का पार्ट मानते हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिड्यूसेस एसेट्स. तो लायबिलिटीज जब भी क्रिएट होंगी जब आप बोरो करेंगे. सो ऑटोमेटिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रिसिप्ट हम उसमें मानकर चलते हैं कि भाई इतना एस्टिमेटेड हमारा बोरिंग्स हो जाएगा, इतना हमारा टैक्स, इतना नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आ जाएंगे, इतना डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा. तो अगर हम उसमें से जो रिसिप्ट हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट जो इन दोनों का सम है, इसमें से अगर हम बोरोइंग्स को हटा दें और उसको टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर दें तो जो डिफरेंस बचेगा उसको बोला जाएगा फिस्कल डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट टेल्स अस द एक्चुअल लेवल ऑफ बोरोइंग, कि टोटल कितना हम बोरो करने वाले हैं. वी कैन फाइनेंस दिस फिस्कल डेफिसिट बाय टू वेज. एक तो बोरोइंग है जो मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा बोरोइंग कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी फ्यूचर में. पे करने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा. दूसरा है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी. इफ गवर्नमेंट रिसोर्ट टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी व्हाट वुड हैपन? जो हमारी करेंसी है दैट इज नॉन कन्वर्टेबल, एक बार छप गई तो छप गई, तो वो पूरी इकोनॉमी में आ जाएगी और इन्फ्लेशनरी होगी, इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे. और प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इज कंसीडर्ड एज सिन. इट इज ग्रेटेस्ट सिन, क्योंकि आप अगर नोट छाप देंगे तो जो हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और जो पुअर पीपल हैं दे कैन नॉट अफोर्ड दीज गुड्स एंड सर्विसेज. सो गवर्नमेंट बचती है नया नोट छापने से. तो जब भी फिस्कल डेफिसिट है तो हमारे सामने इन दोनों चॉइसेस में से जो मजबूत चॉइस है वो है कि बोरो कर लिया जाए, कि फ्यूचर में हम उसको पे कर देंगे, उतना पैसा इकोनॉमी से बाहर निकाल देंगे. तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट. इट टेल्स अस द एक्चुअल लेवल ऑफ बोरोइंग्स इन द इकोनॉमी. हम बोल देते हैं कोई न्यूमेरिकल आता है उसके अंदर बोरोइंग्स लिखी होती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, तो जितना बोरोइंग है उस न्यूमेरिकल में वो ही फिस्कल डेफिसिट होगा. दूसरा हमारा आता है अब प्राइमरी डेफिसिट. द सेकंड टाइप ऑफ डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट. सो प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन
फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं दीज आर ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट है 2000 करोड़ रुपीस का और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो है 1900 करोड़ का, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ 100 करोड़। तो दिस इज अ लो प्राइमरी डेफिसिट। तो हम बोलेंगे जो भी फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ है दैट इज ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट ने अपना जो बजट बनाया है वो अपनी रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है कि जितना भी रिसिप्ट आ रहा है गवर्नमेंट इकोनॉमी में पूरा खर्च कर रही है, बट जो एक्सेस ये जो 2000 करोड़ रुपीस का फिस्कल डेफिसिट है यानी जो एक्सेस गवर्नमेंट खर्च कर रही है यानी जो बोरो कर रही है वो किसके लिए, हमने जो बोरोइंग्स की थी उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट बोरो कर रही है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है ज्यादा खर्च कर रही है उसके लिए फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हुआ है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द इंडिकेटर टू फाइंड आउट कि why this fiscal deficit has arisen in the economy, कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट के बजट में ये फिस्कल डेफिसिट क्यों आया है। A high primary deficit indicates that the fiscal deficit in the budget does not arise due to interest payment. एग्जांपल ले लेते हैं कि 200 करोड़ का फिस्कल 2000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है और 100 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू आ गई 1900 करोड़। सो जो 1900 करोड़ गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है ज्यादा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट या तो स्पेंड थ्रिफ्ट है या गवर्नमेंट को इकोनॉमी में डेवलप करना होगा। कोई गवर्नमेंट का रैपिड रेल प्रोजेक्ट होगा, कोई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है। सोशल सेक्टर पे भी ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, कोई कैलेमिटी आ गई है तो भी ज्यादा स्पेंड कर सकती है। जैसे कोरोना है तो गवर्नमेंट अभी स्पेंड कर रही है बहुत ज्यादा, इतना प्रोडक्शन नहीं है। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है इट इंडिकेट्स अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स इन द इकोनॉमी। तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया। नाउ थर्ड वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। सो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेसिकली इट इज नॉन प्रोडक्टिव, कोई एसेट आपका क्रिएट नहीं होता, कोई लायबिलिटी आप इससे कम नहीं करते और आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट विल क्रिएट इन द बजट। अब इसको फाइनेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको फाइनेंस करने के लिए अगर हम बोरो करते हैं तो ये होगी दो धारी तलवार। वो कैसे? अगर आपने बोरो किया तो आपकी फ्यूचर में लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, फिर आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा, यानी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा बिना बात ही। दूसरा कि अगर आप उस बोरोइंग अमाउंट को यूज करते एज एन इन्वेस्टमेंट तो कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते थे। सो यू हैव टू फोरगो द इंटरेस्ट इन द इनकम if you would have invested that borrowed amount and you have to pay interest on the borrowed amount plus the borrowed amount. So ये तो ऐसा हो गया कि आप उधार लेकर पार्टी दे रहे हैं। जब आप उधार लेकर पार्टी देंगे आपका पूरा पैसा खर्च हो गया और दूसरा आपके ऊपर लायबिलिटी भी चढ़ गई कि आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट से बचना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अब रेवेन्यू डेफिसिट को सही करने का तरीका है भाई अपनी टैक्स जो इनकम है वो टैक्स से बढ़ा दो, क्योंकि बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन टैक्स से आप अपनी इनकम बढ़ा दीजिए। अगर टैक्स का लेवल रेज करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आप थोड़ा सा बैलेंस ला पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट। सो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज रिसिप्ट्स के बारे में, हमने कंप्लीट कर लिया है टाइप्स ऑफ बजट के बारे में और हमने कंप्लीट कर लिया है अब डेफिसिट्स के बारे में। सो इफ डेफिसिट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से आप कर सकते हैं। यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन के थ्रू और कुछ एक दो न्यूमेरिक्स के थ्रू इसको पूरा कवर कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।